Hello everyone, welcome to my channel. This is Kushal and I have brought the last video on going places. As you all know that I was teaching you that Sophie went to her childhood favorite place and she waited for Danny Casey for a long time. But Danny Casey did not come. And then she took some time to balance between her reality and fantasy. Okay, so let's start without wasting much of your time. Here I sit. Sophie was still sitting there. She said to herself, wishing Danny would come, and she wished that Danny कैसे would come. मतलब उसने इच्छा की कि डैनी कैसे आएगा. अपने आप में ही सोच रही है. Wishing he would come and sensing the time passing. Means he was still thinking that Danny Casey would come, and she was also perceiving the passing of the time. उसको समय बीतने का भी एहसास था कि समय बीत से जा रहा था, पर फिर भी उसको ये लग रहा था कि डैनी कैसे आएगा. I feel the pangs of doubt stirring inside me, and she felt the pain. Pangs means pain. Pangs means pain. She felt the pain of doubt kindled inside her. Okay, means she could realize the pain caused by doubt. उसको दर्द का एहसास हो रहा था. कौन सा दर्द? जो उसको संदेह की वजह से हो रहा था कि लोग उसके ऊपर डाउट करेंगे अब. ठीक है. I watched for him, but still there is no sign of him. She waited for Danny Casey, but there was no sign of him. There was no trace of him. I remember Job saying he would never come. Then she remembered Job's word regarding Danny Casey's not coming to meet her. Okay? And how none of them believed me when I told them. And she also remembered that how her family members doubted her when she told that Danny Casey would come to meet her. I wonder, what will I do? I wonder. Then she thought what she would do. What can I tell them now if he does not come? She thought, what would she say? What she would say, what she would tell her family members if Danny Casey did not come to meet her. Okay, कि वो क्या जवाब देगी अपने घर वालों को. वो तो उसके ऊपर डाउट करेंगे जैसे पहले किया करते थे. But we know how it was. Even then she thought that only they know how it was. Only they know about their meeting. है ना. वी कौन? हम जानते थे कि ये कैसे था, कि मीटिंग कैसे हुई और मतलब हुई कि नहीं हुई. तो ये सब हम जानते हैं. हम कौन? सोफी और डैनी कैसे हुई. डैनी एंड मी. ओके, दैट्स द मेन थिंग. दिस वॉज द पॉइंट. ये बात थी कि इस मीटिंग के बारे में और कौन जानता था. कोई नहीं जानता था, सिर्फ सोफी और डैनी जानते थे. हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव. तो लोगों को हम कैसे मजबूर कर सकते हैं बिलीव करने के लिए. वो तो उनकी मर्जी है, किसी चीज के ऊपर वो बिलीव करें या ना करें. ठीक है. हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव. सो शी थॉट दैट पीपल शुड बी अलाउड टू think what they wanted. Okay, means she thought that she should not bother about them. Okay, they were free to think accordingly, according to their own mentality. But all the same, it makes me discontent. But ultimately what was the result? The result was that she was disappointed. Despondent वो हो गई थी, मतलब disappointed हो गई थी. This knowing I'll never be able to show them they are wrong to doubt me. And she also failed to prove herself right. She thought that she would never be able to prove her family members wrong who always doubted her. कि जो उसके ऊपर डाउट करते थे घर वाले, अब उनको कभी गलत साबित नहीं कर पाएगी. ठीक है. ये चीज यहाँ पर साबित हो गई थी. She waited. उसने इंतजार किया. किसका इंतजार किया? डैनी कैसे का इंतजार किया. Measuring in this way the changes taking place in her, and simultaneously she realized. Measuring यहाँ पर है, realize से मतलब simultaneously she realized the changes which had come in her.
जो उसमें बदलाव हो रहे थे, जो वो महसूस कर रही थी, वो भी मतलब उसने एहसास की. रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, बट सबमिशन वॉज नॉट मेंट फॉर सोफी. रेजिग्नेशन का मतलब है एक तरह से सबमिशन, कि अपने आप को सबमिट कर देना, ठीक है, यानी कि सबमिशन टू रियलिटी. Submission was not meant for Sophie. She was not ready to accept the reality. She, however, faced the reality. She became sad and disappointed facing the reality. Even then, she was not ready to accept it. So, resignation was not a sudden thing for her. Okay, now I have become sad. अब मैं उदास हो गई. She got disappointed because her dream was unfulfilled. Her dream of meeting Danny Casey was unfulfilled. She thought, and it is a hard burden to carry. Then she thought that it would be very difficult to carry that burden, to carry the burden of her unfulfilled dream. This sadness, and to carry the sadness caused by her unfulfilled dream. कि जो उदासी उसको हुई है अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम की वजह से, और इस बर्डन को उठाना, अनफुलफिल्ड ड्रीम का जो बर्डन है उसको उठाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है. सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन. मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं कौन, सोफी, ठीक है. वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम. She was still waiting for Danny Casey and even knew that Danny Casey would not come because it was her fantasy only. Okay, she had not met Danny Casey in a reality. So it was only her imagination. I can see the future. She could see her future and how I will have to live with this burden. And she realized that she would have to lead her life with that burden, with the burden of her unfulfilled dream. Shattered dream. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यही एडोलेसेंट्स का हाल होता है कि पहले तो वो ड्रीम्स में रहते हैं, हीरो वर्शिपिंग करते रहते हैं, और जब लाइफ में हकीकत उनके सामने आती है, देन लाइफ बिकम्स अ बर्डन फॉर देम एंड इट बिकम्स हार्ड फॉर देम टू लिव लाइफ नॉर्मली. ओके, दे गेट डिसअपॉइंटेड इन लाइफ एंड समटाइम्स दे become the victim of depression. And in life, sometimes some teenagers even are forced to commit suicide. इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है. तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सोफी के लिए भी यहाँ पर. बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड. सॉरी, आई थिंक आई हैव स्किप्ड अ लाइन. यहाँ देखिए. Yes, but I will. They of course will doubt me as they always doubted me. She thought that her family members will doubt her as usual. But I will have to hold up my head. But she thought that she would have to raise her head. She would have to behave confidently, and she would have to pretend, है ना, pretend that she met Danny Casey. उसने सोचा कि उसको अपना सिर ऊंचा रखना पड़ेगा और प्राइड के साथ उसको जीना पड़ेगा, ठीक है. उसको ढोंग करना पड़ेगा कि वो डैनी कैसे से मिलके आई है. ऑलरेडी आई एनविसेज्ड द स्लो वॉक होम. और ऑलरेडी उसने एनविसेज कर लिया. एनविसेज करना क्या होता है, इमेजिन करना, एनविसेज. ओके, द स्लो वॉक होम एंड जॉस डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम. Actually sitting there, she imagined her going home slowly and lazily. Okay, and Job's disappointed, and Job's sadness also, Job's disappointment also, when she told him that Danny Casey did not come to meet her. ठीक है, उसने वहां बैठे बैठे ये इमेजिन कर लिया कि किस तरीके से वो हैवी हार्ट से चल के घर जा रही थी, और किस तरीके से फिर उसने घर जाके जोफ से बताया कि डैनी कैसे मिलने नहीं आया, है ना, और किस तरीके से फिर जोफ उदास हो जाएगा. एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर. एंड देन शी ऑल्सो इमेजिन दैट डैनी दैट जोफ लेफ्ट द हाउस इन एंगर, स्लैमिंग द डोर. डोर को स्लैम करके मतलब
बहुत जोर से बंद करके, ठीक है, बैंगिंग इट. But we know how it was. And Sophie said that only she and Danny Casey knew about their meeting, and they knew how it was, how it had been. I shall tell myself, Danny and me. It is a hard thing, this sadness. And she again thought that it was a hard thing for her to tolerate, and it was difficult to bear that sadness. Okay, कौन सी sadness जो उसके ड्रीम के shattered होने की वजह से उसमें आई है. She climbed the crumbling steps to the street. Climbing up the broken steps, she came to the street. वो जहाँ पर बैठी हुई थी वहां से वो क्रम्बलिंग स्टेप्स थी, टूटी हुई थोड़ी सी, मतलब जर्जर हालत में, पुरानी, है ना. तो उन सीढ़ियों से चढ़ करके वो स्ट्रीट में आ गई, गली में आ गई. आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल propped against the wall, and just outside the pub she saw her father's bicycle. Okay, she saw her father's bicycle which was parked against the wall, जो वॉल के साथ में ही खड़ी की गई थी, and was glad he would not be there when she got home. And she became happy as she thought that her father would not be at home when she reached there, and he would not see her expression. Okay, and he would not doubt her at that time. तो इस चीज को लेकर के उसको बड़ी खुशी होती है. Okay, excuse me, but aren't you Danny Casey? But again, while going home, she imagined Danny Casey once more. Students, this shows the extremity of her imagining. Okay, her imagination or her fantasizing. कि ये है कि वो रियलिटी को भी फेस करके आई है, दुखी भी हो गई थी, है ना, और फिर भी मतलब रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है, रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है ना. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो फिर से इमेजिन कर रही है डैनी कैसे की मीटिंग को. ठीक है, घर आते हुए वापस. एक्सक्यूज मी, बट आरंट यू डैनी कैसे? शी अगेन इमेजिन डैनी कैसे एंड आस्क्ड हिम if he was Danny Casey. Coming through the arcade, she pictured him again outside Roy's. She saw Danny Casey just outside the Roy's window, the same shop, okay, where she had imagined Danny Casey earlier. He turns reddening slightly, and then Danny Casey became red. Danny Casey felt shy. Yes, that's right. And he replied positively, saying that he was Danny Casey. She was right. I watch you every week with my dad and my brothers. We think you are great. Sophie said that they watched him every week, and her family went to watch the United every week, and her family included her family included her dad, her brothers, means the members who went to watch the United. Okay, we think you are great, and they all praised him. They all liked him. They were great fan of Danny Casey. Okay, उसने उसको बताया कि उसके परिवार वाले, जैसे उसके पापा, उसके भाई, सब उसको देखने जाते थे हर वीक. मम्मी नहीं जाती थी ना, तो इसलिए यहाँ पर ये बात हो गई. Oh, well, now that's very nice. Danny Casey said that it was quite good. I wonder, would you mind signing an autograph? At that time also, Sophie demanded an autograph from Danny Casey. His eyes are on the same level as your own. It means कि उसकी eyes same level पे है. It means he had as much height as a normal person have, as we have. मतलब जितनी हम लोगों की हाइट है उतनी ही हाइट है, वो कोई अलग वो नहीं है इंसान. ठीक है, सेम सी हाइट है. His nose is freckled and he had a spotted nose. नोज के ऊपर कुछ स्पॉट्स से हैं,
उसकी फ्रेकल्ड का मतलब क्या होता है, स्पॉट्स होना, ठीक है। तो उसकी नोज के ऊपर कुछ स्पॉट्स से हैं, कुछ मार्क्स से हैं, निशान से हैं। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली एंड हिज नोज इज स्लाइटली बेंट अपवर्ड, उसकी जो नोज है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली एंड ही स्माइल्स मोडेस्टली, और वो स्माइल कैसे करता है, बड़ा विनम्रता से, बड़ा शर्मा करके, शाइली, ओके। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, एंड व्हेन ही स्माइल्स हिज टीथ आर exposed, his teeth are visible, and even gaps between the teeth are also visible. His eyes are green, he has green eyes, and when he looks straight at you, और जब वो कहती है, वो इमेजिन कर रही है वही कि उसकी जो आंखें हैं वो ग्रीन हैं, और जब वो आपको देखता है, स्ट्रेट आपको देखता है, तो his eyes straight at you, they seem to shimmer. If he looks straight at you, then his eyes shimmer, shine. उसकी eyes जो हैं वो shine करती हैं. Okay, they seem gentle. His eyes are gentle. उसकी eyes जो हैं वो gentle हैं. Almost afraid, and he looks scared. Okay. और डैनी कैसे की बात हो रही है ना, वो फिर से इमेजिन कर रही है सोफी. Like a gazelle. He looks scared, just like a gazelle. गैजल होता है ना, जस्ट लाइक ए गैजल, गैजल होता है डियर, हिरन, एक हिरन की तरह, चिंकारा जिसको बोलते हैं, मतलब उसकी तरह उसकी जो आंखें हैं वो डरी डरी दिखती हैं. एंड यू लुक अवे, और जब आप दूर देखते हो तो यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल. व्हेन यू लुक अवे, लुक फार, देन यू गिव अपॉर्चुनिटी टू डैनी कैसे टू लुक एट यू. अदरवाइज वो थोड़ा शाई फील करता है, और जब आप डैनी कैसे को नहीं देखते, कहीं और देखने लग जाते हो, तो फिर डैनी कैसे आपको देखता है, ठीक है. एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस. एंड फिर और क्या होता है, फिर जब आप वापस आते हो तो स्लाइटली ब्रेथलेस, थोड़ा सा वो ब्रेथलेस हो जाता है, मतलब वो फिर से घबरा जाता है. एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल. And then he says that he does not have a pen. Okay, उसके पास पेन नहीं है ऑटोग्राफ देने के लिए. सेम बात वो फिर से कहता है. You realize you haven't either, and then you also realize that you also do not have a pen. कि आपके पास भी पेन नहीं, आपको ये रियलाइज होता है. Okay, my brothers will be very sorry, you say, and then आपको ऐसा महसूस होता है, आप ऐसा बोलते हो कि आपको जो भाई हैं वो बड़े मतलब निराश हो जाएंगे, है ना, उनको बड़ा खेद होगा कि ऑटोग्राफ अभी भी नहीं मिल पाया. एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड. और उसके बाद भी आप मतलब इंतजार करते हो आर्केड में खड़े होकर के, है ना, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े हुए जहाँ पर मतलब डैनी कैसे को इमेजिन किया था. रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, एंड आप अभी भी खड़े खड़े वहां इंतजार करते हो उसकी मेलोडियस वॉइस का. किसकी मेलोडियस वॉइस का, डैनी कैसे की मेलोडियस वॉइस का. द शिमर ऑफ ग्रीन आईज, और उसकी आंखों की, ग्रीन आंखों की उसकी चमक को वहां पर खड़े होकर आप याद करते हो. नो टॉलर देन यू, नो बोल्डर देन यू, और वो आपसे कोई ज्यादा मतलब ज्यादा हाइट का नहीं है, आपसे कोई ज्यादा बोल्डर नहीं है, सेम आपकी तरह. मतलब द प्रोडिजी, prodigy means बस the only difference was that he was a prodigy. Prodigy means a person with extraordinary talent. Okay, the innocent genius, he was a genius. Okay, there was a perfect mixture of or blend of innocence and genius, the great Danny Casey. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोबारा वो इमेजिन कर रही है, यहाँ पर एक्सट्रीमिटी दिखाई हुई है उसकी इमेजिनेशन की, किस हद तक वो डे ड्रीमिंग करती है ना. सच्चाई का वो सामना कर चुकी होती है, पर फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, उदास हो जाती है, तब भी लाइफ में मतलब वो जो है इमेजिन करती रहती है, ठीक है. तो एडोलेसेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हाउ यूजलेस इट इज़ टू रिमेन इन ड्रीम्स, टू रिमेन इन अनरीचेबल ड्रीम्स. Okay, and to hero worship. Okay, it takes the teenagers far from far from the reality and their dreams,
and later in life it becomes very hard for them to lead a life. Okay, and she saw it all again, और उसने ये सब दोबारा देखा लास्ट सैटरडे मीन्स फिर वो सैटरडे को फिर से वहीं मतलब यूनाइटेड देखने के लिए, यूनाइटेड का मैच देखने के लिए गए स्टेडियम में, उनकी सारी फैमिली एक्सक्लूडिंग सोफीज मदर. सॉ हिम गोस पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर्स. ओके, तो यहाँ क्या है कि सोफी सो डैनी कैसे हियर रनिंग फास्ट. गोस पास्ट का मतलब तेजी से गुजरना. उसने तेजी से गुजरते उसको देखा. कहाँ से गुजरते हुए? द लंबरिंग डिफेंडर्स. लंबरिंग होता है लेजी, मूविंग स्लोली. ठीक है, डिफेंड लंबरिंग. लंबरिंग मीन्स मूविंग स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए. डिफेंडर्स के पास से तेजी से गुजरते हुए देखा डैनी कैसे को. हार्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ. और वहाँ 50,000 मतलब लगभग 50,000 जो है स्पेक्टेटर्स को अपनी सांसें थामते हुए सुना. एज ही होवर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल. क्यों? क्योंकि ही कौन? डैनी कैसे. होवर्ड मीन्स मंडराना. ठीक है, आसपास घूमना. मोमेंटरली पल भर के लिए वो मंडराया बॉल के आसपास. एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल. एंड देन डैनी कैसे मेड द गोल, क्लियरली मेड द गोल. क्रिस्पली होता है क्लियरली. देन डैनी कैसे मेड द गोल क्लियरली. एंड देयर वाज द एक्सप्लोजन, देयर वाज अ साउंड ऑफ हैप्पीनेस. खुशी की आवाजें थी उधर. ठीक है, एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन का मतलब एक तरह से विस्फोट होता है. तो विस्फोट से मतलब यहाँ पर क्या है? सडन जो है एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट. ओके, एज स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल. जैसे ही मतलब डैनी कैसे ने गोल किया तो एक सडन एक्सप्लोजन हुआ साउंड्स का. अचानक से आवाज आई. द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन. एप्रोबेशन मीन्स अप्रूवल होता है, स्वीकृति. एक्सल्टेंट मीन्स होता है वेरी हैप्पी, खुशी की, स्वीकृति की जो अचानक सडन फीलिंग्स थी उनका इरप्शन हुआ. ठीक है, देयर वाज अ सडन एक्सप्रेशन ऑफ इलेशन, of happiness and approval, praise for Danny Kesse, that it was he who made the country win. Okay, इस तरीके से खुशी की लहर थी दर्शकों में. This way the chapter is over. Thank you and please subscribe the channel. Don't forget to subscribe it. Thank you.